اسد خٹک جو اپنا ترانہ پیش کر رہے ہیں. جلسے کی گہما گہمی عروج پر ہے. ہمیں جوائن کیا ہے گروپ ایڈیٹر ہیں ڈیلی ایکسپریس نیوز کے ایاز خان صاحب. بہت شکریہ ایاز خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. ایاز صاحب یہ کہا جا رہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ جمع کریں گے پاکستان تحریک انصاف. کچھ کارکنوں کے تحفظات بھی تھے کہ 2 نومبر کا دھرنا مؤخر کر دیا گیا, یوم تشکر میں تبدیل ہو گیا. تو ابھی یہ ساری صورتحال پر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ تو ظاہر ہے وہ جیسے بھی حالات ہوتے 10 لاکھ لوگ تو نہیں آ سکتے تھے. وہ ایک دعویٰ ہی ہوتا ہے, ملین مارچ کے بڑے دعوے ہم نے دیکھے ہیں. یہاں لاہور میں موچی دروازے کا وہ جو ایک گراؤنڈ ہے اس میں بھی لاکھوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا. حالانکہ وہ ایک دفعہ کسی نے ٹوٹل کاؤنٹ کیا تھا تو وہاں 30 سے 35 ہزار لوگ آتے تھے. تو وہ تو نہیں آنے تھے. لیکن ایک بات ہے کہ کل جس طرح سے ڈس اپوائنٹڈ تھے کارکن, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اجتماع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تحریک انصاف والے. صحیح. ایاز خان صاحب ایک تاثر تھا کہ کارکنان اب ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور آج جمع نہیں ہو پائیں گے, تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اچھا اجتماع کرنے میں اب تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اب کیا حکومت کی جانب سے بھی یہ باتیں آ رہی تھی کہ عمران خان اب ناکام ہو گئے ہیں, یہ پسپائی ہے ان کی؟ دیکھیں بات سمپل ہے. پی ایم ایل این اس وقت رولنگ پارٹی ہے اور ان کی سب سے بڑی اپوزیشن کون سی ہے؟ یہ سیدھی بات ہے. جو اپوزیشن ریئل اپوزیشن کر رہی ہے وہ ظاہر ہے تحریک انصاف ہے, عمران خان صاحب ہیں. تو کارکن ناراض ضرور ہوتا ہے, دل برداشتہ بھی ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ پھر اپنے لیڈر کے ساتھ ہی اس نے جانا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس اور آپشن یا چوائس ہوتی نہیں ہے. کارکن یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح ہمارے سیاستدان پارٹی بدل لیتے ہیں راتوں رات, کارکن اس طرح سے نہیں بدلتا. اس کی محبت عقیدت وہیں رہتی ہے. بہت ناراض ہوتا ہے, گھر چلا جاتا ہے, روٹھ جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا گول یہ ہوتا ہے کہ میری پارٹی کو حکومت ملنی چاہیے, اور جب حکومت ملتی ہے تو پھر ظاہر فائدہ بھی ہوتا ہے کارکن کا, ورنہ اپوزیشن میں تو فائدہ نہیں ہوتا, ماری کھانی پڑتی ہے. ایاز خان صاحب کارکنان کی ناراضگی اپنی جگہ, شیخ رشید بھی کچھ ناراض لگے جب انہوں نے 2 نومبر جو دھرنے کی کال واپس لی اور یوم تشکر میں بدلا. آج لیکن یہاں موجود ہیں اور کافی ان کے درمیان گفتگو بھی ہو رہی تھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے, اور کافی مطمئن بھی نظر آ رہے تھے شیخ رشید بھی اور عمران خان صاحب بھی. صرف گفتگو نہیں ہو رہی تھی, دعا مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے شیخ صاحب کے پاس بھی اور کیا آپشن ہے. وہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, وہ ناراضگی اپنی جگہ, ان کا رائٹ تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ان کے جلسے میں ہر صورت پہنچیں گے. نہیں پہنچے تو ظاہر ہے شیخ رشید صاحب کو اس کا دکھ ہوا اور اس کا اظہار انہوں نے کر دیا, اور عمران خان نے جواب بھی دے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کپتان اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے. اس کے باوجود وہ جو رنجشیں تھیں وقتی تھیں, ظاہر ہے وہ ریئیکشن تھا دونوں طرف سے. اس کے بعد میرے خیال وہ ریئیکشن ختم ہو گیا اور دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے. صحیح. ایاز خان صاحب آج جو یہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے, یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ کیونکہ پہلے کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے, اور اس کے بعد دھرنا کال واپس لی گئی, کچھ صورتحال عجیب لگی, کارکنان بھی تھوڑے ناراض نظر آئے تھے اور رہنما بھی ناراض نظر آئے تھے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میسج کیا دیا جا رہا ہے آج کے اس یوم تشکر کا؟ دیکھیے 2 کام ہوئے ہیں. ایک کل وہ انہوں نے اظہار کیا تھا چوہے نثار نے, ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بار عمران خان نے ایک پولیٹیشن والا فیصلہ کیا ہے, اور بالکل ٹھیک ہے. آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی فورم پہ, ہائیسٹ فورم پہ تحقیقات شروع ہو جائے, ان کی سنوائی ہو جائے. وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ سے بڑا تو فورم نہیں ہے کوئی. جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے جی ایاز صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. وہ وقتی طور پہ ایک دعویٰ وہ لگا تھا کہ یہ شاید غلط کام کیا ہے, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ایک وائز ڈیسیژن میں اسے سمجھتا ہوں, کیونکہ جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے, وہ جب آپ جلسوں میں ہوتے ہیں اور جوش میں ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جی استعفے سے کم ہم مانیں گے نہیں اور استعفیٰ لے کے جائیں گے, لیکن ہے کہ وہ کئی چیزیں ٹریک پہ آ جائیں. وہ چونکہ آ گئی ہیں تو میرے خیال عمران خان صاحب مطمئن ہو گئے ہیں.
अच्छा, सही। इमरान खान आपके ख्याल में मुतमिन हो गए हैं। इमरान खान एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आया साहब, इमरान खान आज आप ये देख रहे हैं यौम तशक्कुर है, आप इस सारी सूरत हाल पे खुसूसी ट्रांसमिशन भी करते रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर। आप क्या कमेंट करेंगे, क्या मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के इस यौम तशक्कुर के हवाले से? देखें, लोग तो इकट्ठे हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी जलसा करती है बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रहा कि इमरान खान को पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस तरह से जिस तरह करना चाहिए था। जब उन्होंने कॉल दिया एहतजाज की तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तो एक बड़ा काफिला आ रहा था, लेकिन पंजाब ने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी आप पंजाब के शहरों को उंगलियों पे गिने तो उंगलियां खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे यहाँ पे इस्लाह है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, लाहौर है, गुजरांवाला है, जेलम है, चकवाल है, दीना है, इमरान खान साहब का अपना मियाँ वाली है। इन सारे शहरों से इवन शाह महमूद कुरैशी साहब के अपने बहुत बड़ा वहाँ पे हल्का है जहाँ उनके अपने मुरीदैन है। ये मैं अभी लाहौर से आगे नहीं गया, ये मुल्तान से आगे तक बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया पंजाब का, जहाँ हमने नहीं देखा कि लोग निकले हो, उन्होंने मुजामत की हो, पुलिस के साथ झगड़ा हुआ हो। यहाँ पे हमने ये भी नहीं देखा कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पुलिस में निकल के या फोर्सेस ने लोगों को रोकने की कोशिश की हो। तो यहाँ पंजाब ने प्रॉपरली उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया इमरान खान साहब को जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला वहां से एक बड़ा काफिला लेकर आए थे। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हुई है कि पंजाब का पूरी तरह से रिस्पॉन्ड ना करना भी एक वजह हो सकती है खान साहब की कमजोरी की जो इसमें शो हुई है। अब आज का जलसा जो है वो इमरान खान के लिए तहरीक इंसाफ के लिए एक रेफरेंडम है। यहाँ पे अगर लोग भर जाते और बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाएं तो फिर इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि उनका फैसला बिल्कुल ठीक है, और उनके आम कारकुन ने भी उनके फैसले पे लब्बैक कहा है। देखिए, पॉलिटिकली अगर आप इसको समझें तो इमरान खान का फैसला बड़ा समझदारी वाला है। उनके फैसले के मुस्बत नताए जाएंगे, वो अपनी हुकूमत की फोकस कर सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाके जिस आदमी ने भी करप्शन किया वो फंस जाएगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो इमरान खान साहब के साथ ही है। तो जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में बात होगी, तो बात नहीं होगी, तो बात का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया, खान साहब का बड़ा समझदार फैसला है। लेकिन क्या उनके कारकुनों ने इस फैसले को पसंद किया या नहीं, ये आज से पता करना था। मैं एक बात बड़ा श्योर आपको बता दूं, मैंने वहां से भी रिपोर्ट की है, हम टेलीविजन से भी देख रहे हैं, इमरान खान ने इस्लामाबाद में इससे बड़े जलसे पहले किए हैं। ये जो जलसा आज हो रहा है बिलाशुबा बड़ी तादाद में लोग आए हैं, कारकुन बहुत बड़ी तादाद में वहां पे जमा है, वहां लोगों का रश लगा हुआ है, लोग अभी भी पहुंच रहे हैं, सड़कों पे भी रश है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, वादे तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में इस जलसे से बड़े जलसे किए हैं। इवन जो रायगढ़ में उन्होंने जलसा किया था वो जलसा इससे बड़ा था। इमरान खान साहब की तारीख का या उनकी सियासी तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा अगर क्लेम किया जाए तो ये नहीं है। इससे बड़े बड़े बहुत सारे जलसे इससे पहले इमरान खान साहब कर चुके हैं। तो अभी उनको अपनी पार्टी में काम करने की बड़ी जरूरत पड़ेगी अशद, क्योंकि पनामा वाला इशू तो है वो इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही फोरम पे ले जाके छोड़ दिया है और हुकूमत को मानना पड़ गया इनके दबाव की वजह से। तो ये एक कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की है और पाकिस्तान की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब को काम करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि पंजाब से उन्हें किसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, रावलपिंडी वाले क्या कर रहे थे, इस्लामाबाद वाले क्या कर रहे थे और खैबर पख्तूनख्वा वाले क्या कर रहे थे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वाले पहुंच नहीं सके, वो रुकावटों के पीछे रुक गए थे। बेशक उनका काफिला वो क्लेम कर रहे हैं बहुत बड़ा था, लेकिन वो जबरदस्ती इस्लामाबाद में नहीं घुस सके। और हुआ ये कि फॉर्चुनेटली मामला मुज़ाकरात के जरिए, बैकडोर चैनल के जरिए और कुछ दबाव के जरिए वो हल हो गए और अदालत ने इसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है और आइंदा भी किरदार अदालत का ही होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं तो उनको अपनी पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल अयाज साहब, जैसे इमरान भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अपनी पार्टी के अंदर काम करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि आपने देखा अपोजिशन लीडर का भी काफ़ी सख्त बयान आया कि इमरान खान हमेशा से नवाज शरीफ को स्ट्रॉन्ग करते आए हैं, तो आपके ख्याल में पॉलिटिकली इसको मैच्योर डिसीजन कहा जा सकता है धरने को जलसे में बदलने का? ये पॉलिटिकली तो मैच्योर डिसीजन है। ज़ाहिर है खुर्शीद शाह साहब का अपना सोचने का अंदाज है और उनका राइट भी है कि चूंकि इमरान खान साहब ने बहुत तनकीद की है पीपल्स पार्टी पे और स्पेशली खुर्शीद शाह साहब को डबल शाह तक कहा। खुर्शीद शाह साहब तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें यही कहना चाहिए। लेकिन जो इमरान बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। इमरान खान साहब हमारे जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है
वो बावजूद इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को स्ट्रांग नहीं कर रहे, अपने कारकुनों को उस तरह से मुतहर्रिक नहीं कर पा रहे। इलेक्शन जब आते हैं तो वो पता चलता है कि जी वो इलेक्शन लड़ने की अभी तक इनमें सलाहियत ही नहीं है पीटीआई में। ये समझते हैं कि जलसा बड़ा कर लो, उसमें लोग आ जाते हैं और उसके बाद आप इलेक्शन जीत भी सकते हैं। इस तरह नहीं होता इन्हें अब, और ये इर्द गिर्द नजर भी दौड़ानी पड़ेगी, इन्हें देखना पड़ेगा। कुछ इतलात ऐसी हैं कुछ लीडरों पे, स्पेशली जो पंजाब से वहां पहुंचे, बड़ा दन बना के अकेले पहुंच गए, उन पे नाराजगी का इजहार भी किया इमरान खान साहब ने कि भाई कारकुन किधर हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा वाले तो ताना भी दे रहे हैं कि भाई क्या हमने ठेका ले रखा है कि तहरीक इंसाफ के जलसों में सिर्फ हमने ही आना है, पंजाब वाले क्यों नहीं आते। तो बिल्कुल ये चीजें तवज्जो तलब है, इस तरफ आना पड़ेगा। शायद अभी तक वो इस मोड में नहीं आए कि इलेक्शन की तैयारी करें। मेरा ख्याल है उन्हें इलेक्शन की तैयारी भी करनी चाहिए। और ये धरने अब काफी हो गए हैं, जलसे वो करते रहे, जाहिर है जब वो राइट है उनका, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो कोई ना कोई जलसे का इनेकाद करते हैं। और ज़ाहिर है उनके पास ऐलानात करने के लिए भी बहुत कुछ होता है, ज़ाहिर है कौमी खजाने की चाबी उनके पास है तो वहाँ से वो कुछ भी दे सकते हैं जिसको देना चाहें। तो ये इन चीज़ों पे इमरान खान साहब को जरूर तवज्जो देनी चाहिए। सही। अयाज साहब, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप कर लिया, एक हेयरिंग भी हो गई है, अब आपके ख्याल में पनामा लीक्स को लेकर जो इमरान खान का मुतालबा था कि वो इस्तीफे के बगैर नहीं उठेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की, तो आपके ख्याल में अब ये हालात सही समत में रवाना हो गए हैं, कहा जा सकता है? इमरान से पूछा आपने? नहीं, मैंने आपसे पूछा है सर। नहीं, ये तो देखे ना, ये वो बात होती है एक जलसे की और जज्बात की बात होती है कि जी इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। आपने कारकुन को जब बुलाना होता है जलसे में, उसको दावत देनी होती है, तो इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। और ये सिर्फ इमरान नहीं करते, चूंकि इमरान बार बार करते हैं इसलिए वो लगता है कि जी सिर्फ इमरान करते हैं। ये सारे लीडर्स इसी तरह से लहू गरमा रहे होते हैं अपने कारकुनों का, और उनमें जोश पैदा करके ही उनको लाया जा सकता है, वरना लाया नहीं जा सकता। कारकुन जब जाता है, और वैसे भी हम तो मोर्चों पे यकीन रखने वाली कौम है, हमें लगता है कि रात को सोएंगे तो सुबह सब कुछ चेंज हो चुका होगा। जब कारकुन इस जज्बे के साथ जाता है तो उसको लगता है कि बस हम जाएंगे, इस्तीफा लेंगे और उसके बाद हमारी हुकूमत आ जाएगी। इस तरह नहीं होता, आपने मैक्सिमम अचीव करना होता है। जो 2014 के धरने में इमरान खान साहब को उस वक्त समझ नहीं आई थी, एक पॉइंट ऐसा था कि उस वक्त वो बहुत से मुतालबात मनवा सकते थे अपने, लेकिन वो नहीं मनवा सके अपनी हठधर्मी की वजह से, जिद की वजह से, क्योंकि उस वक्त भी वो ये समझते थे इस्तीफा लेके जाऊंगा। तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने पहले कोई मेजॉरिटी का फैसला किया है, और कारकुन जाहिर है वक्ती तौर पे नाराज है, मायूस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें समझ आएगी तो वो ठीक होते जाएंगे और वो इमरान खान के साथ जाएंगे। और ये एक मुनासिब जलसा, बड़ा जलसा जब हम कह सकते हैं इसे, तो इसका मतलब है कि कारकुन उस पैमाने पे नाराज नहीं है जिस तरह हम सोच रहे थे या समझ रहे थे। कारकुन काफी हद तक वो फिर लपैक का है उसने कि जी ठीक है, मेरे लीडर ने यौम तशक्कुर भी मनाना है तो मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ पे पहुँच गया। बिल्कुल, और कहा भी जा रहा है हुक्म था इमरान खान का और हम यहाँ पहुंचे। इमरान, यही मेरा आपसे सवाल है, अब जो कि पनामा लीक्स का एहतसाब होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू टेकअप कर लिया है, आपके ख्याल में अब ये इतना ही काफ़ी होगा और ये एहतसाब मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि कादरी साहब से कल आप बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि एक बड़ी लंबी हेयरिंग होगी, अब बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा इमरान खान को। देखें, किसी भी सूरत में किसी भी एंड पे ये बात जाती तो लंबा इंतजार तो करना ही पड़ना था। अगर आप इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना देते फिर भी लंबा इंतजार था। अगर इसके ऊपर इमरान खान साहब के जो अपोजिशन के TORs हैं उनको मान लिया जाता और उसके ऊपर भी इंक्वायरी होती फिर भी लंबा इंतजार था। देखिए, इंसाफ होने का अमल जब शुरू होता है तो वो अपने पूरा टाइम अपना लेता है। जजेस के पास पूरा हक है, जो कमीशन बनेगा उसके मेंबर्स के पास पूरा हक है कि वो अपना पूरा टाइम लें, हर चीज का एनालिसिस करें। क्योंकि इसमें देखें पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल नाम हैं, तो वो अपना पूरा टाइम लेंगे। टाइम लेने के बाद वो हर चीज को जांचेंगे, तोलेंगे, फिर देखेंगे अगर उनके पास काफी सबूत हुए तो उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे, फिर उसके ऊपर फैसला होगा। तो टाइम तो लगेगा। अगर ये 6 माह पहले शुरू हो जाता तो फिर भी कोई गारंटी नहीं थी कि टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा ही लगेगा। आप इसको टाइम बार्ड या उसके अंदर बंद नहीं कर सकते। रोजाना की बुनियाद पे इसके ऊपर होगी पेशरफ। तो हो सकता है मामला जल्दी हो जाए, देर से हो जाए, उससे कोई उसको दो राय है ही नहीं। देर से हो जल्दी हो, इंसाफ होना चाहिए सिर्फ, और इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छा फोरम कोई नहीं है।
मामला ये है कि इस बीच में अब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। तहरीक इंसाफ का भी इस मामले से लेना देना सिर्फ इतना है कि ये एक लीगल लड़ाई है, एक कानूनी लड़ाई है। इस कानूनी लड़ाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कानूनदान हैं, जो लेजिस्लेचर हैं, वो अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अंदर जो जो कुछ वो प्रोवाइड कर पाएंगे वो करेंगे, जो इदारे हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, जो जजेस हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे, और जो हुकूमत साइड है वो अपने आप को कैसे डिफेंड करती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर सियासत करनी है, क्योंकि उनकी सियासत डिस्कस हो रही है, आज वो जलसा कर रहे हैं, तो उन्होंने सियासत करनी है तो उनको अपना सियासत का अंदाज भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। उनको इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि बार बार वो इलेक्शन हार रहे हैं। उनको ख्याल करना पड़ेगा कि लोग उनको रिस्पॉन्ड करना छोड़ते जा रहे हैं। वजह क्या है? खैबर पख्तूनख्वा से भी इंतहाई मादरत के साथ जो काफिला आया था, उससे जो क्लेम तहरीक इंसाफ कर रही थी, ना वो उतने लोग थे, और ना जो क्लेम मुस्लिम नून करती थी, ना वो उतने कम थे। लोग अच्छे काफी तादाद में थे, आज भी बड़ी अच्छी तादाद में है। लेकिन ये तहरीक इंसाफ का मुझे नहीं लगता कि वो वाला पीक है जो इसका हुआ करता था। लाहौर का जलसा बहुत बड़ा था, ये जो अभी थोड़ी दिन पहले हमने देखा है। और इसके अलावा जो जलसे यहाँ पे इससे पहले इमरान खान साहब करते रहे, वो बहुत बड़े बड़े जलसे थे। इस्लामाबाद का जो जलसा इमरान खान साहब ने एक किया था, जिस जलसे में उन्होंने धांधली का और महंगाई का और इन सारी चीजों के ऊपर पहला जलसा किया था इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च से पहले, अपने पिछले लॉन्ग मार्च से पहले, वो जलसा भी इससे बड़ा था। इवन इमरान खान जब लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंचे थे तो उस रात को जो उन्होंने बारिश के बावजूद जलसा किया था, वो जलसा भी इससे बड़ा था। तो ये कराची का जलसा छोटा हो जाना, इस्लामाबाद का ये जलसा हालांकि बड़ा जलसा है लेकिन मुकाबलतन उतना बड़ा नहीं है। इमरान खान साहब का क्लेम था कि ये जलसा बहुत बड़ा होगा, 10 लाख लोग आएंगे, तो वो क्लेम इमरान खान साहब का पूरा नहीं हो रहा। अब देखें हुकूमत के ऊपर मौक़िफ़ क्या आता है। खान साहब को बड़ा सीरियसली अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेना पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही है। ठीक है इमरान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अभी जब आज खिताब भी किया जाएगा इमरान खान की जानिब से, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या खिताब करते हैं। अयाज खान साहब और इमरान खान, आप दोनों का